Morning students, I hope you all are fine and healthy at your home. In the last lecture we have completed question number 7 in the exercise 3.7. Now we are resuming the question number 8. Okay, now the question number 8 is find the least number. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. मतलब हमें एक ऐसा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को हम 6 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, 50 से अगर हम डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा और 18 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा। तो इसके लिए मुझे पहले फर्स्ट विल टेक अ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट find LCM of 6, 15 and 18. 6, 15 and 18. So here 6, 15 and 18 with the two division with the two, 3 2s are 60, 15 का तो हो गई नहीं 9. Okay, then 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9. Again 3, 1, 5 as it is, 3 1s are 3. Then 5, 1, 1 and 1. The LCM of 6, 15 and 18 is 2 multiply with 3, multiply with 3, multiply with 5. 7. 3 3s are 9, 5 2s are 10, 10 multiply with 9, it become a 90. So let's see here, ये जो 19 है वो 19 6 से भी डिवाइजेबल है, 15 से भी डिवाइजेबल है और 18 से भी डिवाइजेबल है, पर क्वेश्चन मेरा अलग है। क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसका आप 6 से डिवाइड करो तो भी 5 बचे, 15 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 5 रहे और 18 से करो तो भी रिमाइंडर 5 रहे। सो हियर 19 plus 5 is equal to 19, 5. Which number are, if divided by 6, 15 and 18, the remainder will be 5 in each case, है ना। अगर आप सबसे छोटा ऐसा नंबर है कि इट्स LCM, लेस्ट कॉमन या तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों से डिवाइजेबल है, अगर उसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो इट बिकम 95। अगर अब 95 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, 95 को आप 15 से डिवाइड करोगे लाइक 15 6 are 90, रिमाइंडर विल बी 5 एंड 6 15 are 90, रिमाइंडर विल बी 5, 18 5 are 90, रिमाइंडर विल बी 5। तीनों के कंडीशन में 5 हमें रिमाइंडर के तौर पे मिलेगा, इसलिए सबसे छोटा the lowest number 95 is whenever the divisible with the 6, 15 and 80, in each case remainder will be 5. Okay, now question number 9. Find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. In this case again we can find the LCM. What? We can find the LCM of क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी जो हमने ये एग्जाम्पल किसके जैसा है, लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल किया था 4 उसके जैसा ही है, इनके जैसा एग्जाम्पल आपने होमवर्क में भी किया है, ठीक है। सो हियर द LCM of 18, 24
and 32 is here is 18, 24 and 32 with the 2. 9 2s are 18, 12 and 16 with divisible with the 2. 9 as it is, 6 and 8 with the divisible with 2. 9, 3 and 4 divisible again 2. 9, 3, 2 with 2. 9, 3, 1 with 3 division. 3 3s are 9, 3 1s are 1. 1 as it is, again 3. 3 1s are 3. So, LCM of 18, 24 and 32 is 2. How many times? 1, 2, 3, 4 and 5 times, and 3 2 times. So here 3 3s are 9. Here you can also be multiplied with the 2 2s are 4. 4 2s are 8. 8 2s are 16. 32. 32 multiplied with the 6. Sorry, 9. 3 3s are 9. 9 2s are 18. Carry up 1. 9 3s are 70. 27 plus 1 28. 288. What? So 288 is the first common multiple which are divisible with 18, 24 and 32. But question is different. What is the question? The question is find the least, find the smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number. 4 डिजिट कहाँ से हो स्टार्ट? 10,000 से स्टार्ट होगा ना? क्या 1000 से? 4 डिजिट इट बिकम स्टार्टिंग विद द 4. ओके, तो हम क्या करेंगे? 28. उसके बाद कौन सा मल्टीपल आएगा 28 का? 288 मल्टीप्लाई विथ 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 तो उससे छोटा होगा. आप यहाँ से चेक कर लेंगे तो आप यू कैन चेक विथ द 4. 288 मल्टीप्लाई विथ द 4 कीजिए. 32 कैरी अप 3. 32 प्लस 3 35. कैरी अप 3. 4 2 जा 8. 9 10 11. 1000 ये 4 डिजिट का नंबर है, पर ये थोड़ा बड़ा है, हम 3 से चेक कर लेंगे. 288 मल्टीप्लाई विथ 288 मल्टीप्लाई विथ 2. 288 मल्टीप्लाई विथ 3. 288 मल्टीप्लाई विथ 4. 8 2 जा 16. कैरी अप 1. 8 2 जा 16 plus 70. Carry up 1. 2 2 जा 4 plus 1 5. The next number is 576. 8 3 जा 24. Carry up 2. 8 3 जा 24. 25 and 26. Carry up 2. 3 2 जा 6 7 8. 8 6 4. Okay. Now here 8 4 जा 32. Carry up 3. 8 4 जा 32. 33 34 35. Carry up 3. 8 4 2 जा 8. 8 plus 9 10 and 11. 1152. 1152 is the smallest 4-digit number which are divisible with. So 1152 is smallest 4-digit number which are divisible by 18, 24 and 32. Okay, write down in your fair book. Question number 10 is find the LCM of the following numbers. Observe the common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of the two number in each case? अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी का LCM हम निकालें तो LCM में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है
उसमें कोई अलग सी कोई एलसीएम प्रॉपर्टी लग रही है, या जो एलसीएम मिल रहा है ये दोनों का मल्टीपल, दोनों नंबर के मल्टीपल है या नहीं है। सो हियर 9 is equal to 3 3s are 9 and 4 is equal to 2 2s are 4. ओके, सो हियर सभी नंबर्स एलसीएम में आएंगे, ठीक है। देन एलसीएम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 36, क्योंकि एलसीएम का मतलब सभी नंबर्स ले लेने हैं, जिसमें जो कॉमन है वो एक बार लेना है, जो कॉमन नहीं है वो सभी हमें ले लेने हैं। इसको बोलते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 2 2s are 4 3s are 6 और 5 इज इक्वल टू 5 5 1s are 5। then LCM इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू 60, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सभी कोप्राइम, ये दोनों ही कोप्राइम नंबर से, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये दोनों भी कोप्राइम नंबर से, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 6 इज इक्वल टू 3 2s are 6 and 5 इज इक्वल टू 5 1s are 5। सो यहाँ पे भी दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स दे बोथ आर द कोप्राइम नंबर्स। सो LCM इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। नाउ हियर 15 is equal to 5 multiplied with 3 and 4 is equal to 2 multiplied with 2. Here again, they both are co-prime numbers. So LCM is equal to 15 multiplied with 4 is equal to 60. Now observe, the all numbers are multiple of 6. The first relation of LCM, we observe that all the LCM are multiple of 6. And second observation is that for all are the co-prime numbers. So LCM is the multiplication of both number. So we can write here two observation. The first one is where is the question number 10? We observe that each LCM is multiple of 6. Each LCM is multiple of 6. Each LCM is multiple of 6. And second one is LCM in each case is the product of LCM in each case is multiple of both numbers. Okay, same here in question number 11, find the LCM of the following number in which one number is the factor of other. Okay, यहाँ पे पहले तो इन दोनों का हमें LCM निकालना है और कौन सा नंबर किसका फैक्टर है वो हमें देखना है। 5 and 20. So here 5 1s are 5, या तो हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 एज इट इज 10, 2 5 एज इट इज 5 5 1 and 1. LCM is equal to 2 multiplied with 2 multiplied with 5 is equal to 20. Second one is 6 and 18, 2 3 and 9. Now again 1 and 3 1 1. So LCM is equal to 2 multiplied with 3 multiplied with 3 is equal to 3 3s are 9 2s are 18. Here 12 and 48. So here 2 6 24, 2 3 and 12, 2 3 and 6, 2 3 and 3 3 1 1. Then LCM is 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 3. 2 2s are 4, 2s are 6, 2s are 12, 12 3s are 48. And the last question D here,
9 and 45. 5, 9 as it is. 9, 4 9s are 55. 5 9s are 55. 3 3s are. The LCM is 5 multiplied with 3 multiplied 3 is equal to 45. Okay. In each case, we can see that the smaller number is factor of the greater number. The smaller is the factor of biggest number. यहाँ पे 5 is the factor of 20, 6 is the factor of 18, 12 is the factor of the 48 and 9 is the factor of the 45. So we can say that the greater number, biggest जगह greater भी यूज़ कर सकते हैं हम. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ख़त्म होता है. अच्छे से पूरा चैप्टर फिर बुक में लिख लीजिए. So students, now we introducing the new chapter number 4. Okay, what is the chapter number 4? Chapter number 4 is basic geometrical ideas. तो what is the geometry? अब तक हमने जो पढ़ा है वो नंबर्स पढ़ा है, नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना. अभी तक जो हमने पढ़ा था 1 2 3 4 ऐसे. अब हम जियोमेट्री पे आगे बढ़ेंगे. तो जियोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथ्स. मैथ्स में जियोमेट्री मतलब जो सब ड्रॉ करना होता है ना. सभी जगह पे कैलकुलेशन नहीं आता, कभी कभी जगह पे हमें ड्रॉ करके भी रिप्रेजेंट करना होता है. तो जब हम वो ड्राइंग करेंगे कोई भी शीट पे अकॉर्डिंग टू द मैथ सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमें कई नई डेफिनेशन जाननी होगी. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द पॉइंट. नया चैप्टर नए पेज से अच्छे हेडिंग रख लेना. ठीक है. ऊपर हेडिंग अच्छे से लिख लेना होगा. द बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर नेम इज जियोमेट्रिकल. बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज कौन कौन से वो हमें देखना है. तो चलो द पॉइंट. पॉइंट किसे कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन. पॉइंट हमें कोई लोकेशन रिप्रेजेंट करता है. ये पहली बात आपके माइंड में होना चाहिए. पॉइंट इज रिप्रेजेंट अ लोकेशन. अब उसको हम किस तरह से सोच सकते हैं? अ वेरी टीनी डॉट ऑन अ पेपर गिव अस एन आइडिया अबाउट द पॉइंट. है ना. कोई भी पेज पे हम छोटा सा पेंसिल के द्वारा कोई पॉइंट करें, कोई पॉइंट रखे, तो इट्स कॉल्ड अ पॉइंट. ओके. कोई पेपर पे हम टीनी डॉट बनाते हैं, उसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में पॉइंट कहते हैं. क्या बोलते हैं? पॉइंट. और द पॉइंट आर डिनोटेटेड बाय कैपिटल लेटर्स. लाइक पॉइंट के नियर में हम ये लिख, इट्स कॉल्ड पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई. इट्स कॉल्ड अ नेम. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट बी, व्हाटएवर. पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. और पॉइंट क्या है? क्योंकि पॉइंट हमें लोकेशन देता है. क्या देता है? इट्स रिप्रेजेंट अ लोकेशन. अच्छे से डेफिनेशन याद होनी चाहिए. ठीक है. अब पॉइंट के बाद आएगा लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट. पॉइंट मिला के हमें लाइन सेगमेंट बनती है. देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट रखा, इस पॉइंट के एग्जैक्ट नियरेस्ट दूसरा पॉइंट, बाद में तीसरा, 4 5 6 7, इस तरह से मैं पॉइंट जोड़ते जाऊंगा. देन वी कैन गेट द लाइन सेगमेंट. वी कैन गेट द लाइन सेगमेंट. ठीक है. सो हियर what is the definition of the line segment? Let's see. In the adjoining figure, कोई भी फिगर को ज्वाइन करने के लिए 2 points A and B, 2 points A and B, 2 points are joined by the ruler. ruler रख के अगर मैं दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, okay, this gives us a line segment AB. This gives us line segment AB. Written as a AB ऊपर
लाइन रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न एज अ AB, इट्स ऑल्सो बी रिटन लाइक अ लाइन सेगमेंट AB। जब भी आपको इस तरह की साइन दिखाई दे, कोई भी दो कैपिटल लेटर्स के ऊपर लाइन ड्रॉ की हो, तो इट्स रीड एज अ लाइन सेगमेंट AB। ओके, नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज द लाइन। व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ द लाइन सेगमेंट AB, अगर ये लाइन सेगमेंट AB था ऊपर वाला, इज एक्सटेंडेड बायॉन्ड AB, A के पीछे अगर इसको मैं खींच लूं, कहां तक? एक्सटेंड बायॉन्ड A इन वन डायरेक्शन एंड B इन अदर डायरेक्शन, इस तरह से एंडलेसली, उसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट होते हैं, A एंड B, और लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसके बीच में कई सारे नंबर्स, कई सारे डॉट आते हैं। लाइन पे कई सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन एंडलेस है, क्या है? एंडलेस। देन वी कैन गेट द लाइन AB, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? इस तरह से। लाइन सेगमेंट के ऊपर सिंपल लाइन होती है, और लाइन के ऊपर इस तरह से एरो वाली लाइन होती है। इसको रीड करते हैं लाइन सेगमेंट AB, इसको रीड करते हैं लाइन AB। लाइन AB एंडलेस है, और लाइन सेगमेंट AB के दो एंड पॉइंट है। आपको इस तरह से सब मार्क करना होगा। अब लास्ट डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ टू लाइन्स हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, like a one line PQ, okay, if two line, one line and second line AB, if two line have exactly one common point, दोनों में एक ही कॉमन है, देखो यहाँ पे पॉइंट O, लाइन PQ में भी और लाइन AB में, दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है? जो दोनों में आ रहा है वैसा पॉइंट है O। ठीक है, देन कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब दो लाइन एक दूसरे को कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होती हो, दोनों में कोई भी एक पॉइंट कॉमन होता हो, तो उन दोनों लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये चारों डेफिनेशन अच्छे हैंडराइटिंग से समझ के दो बार लिख लेना, एक बार फिर बुक में, एक बार होमवर्क की बुक में। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज पैरेलल लाइन। व्हाट इज द पैरेलल लाइन? The line which are not intersect each other are called parallel line। ऐसी दो लाइन, दो या तीन से ज़्यादा whatever, यहाँ पे अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती ही न हो, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करती हो, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अंडरस्टूड? जो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, एक दूसरे को छेदती ना हो। रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, मतलब रे है वो है लाइन का एक पार्ट है। इट स्टार्ट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे एंड गोज एंडलेसली इन द वन डायरेक्शन। लाइक अगर कोई यहाँ से स्टार्ट होता हो लाइन और ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता हो, तो P और Q, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज P एंड गोज टू द एंडलेसली ऑन द राइट हैंड साइड। इट्स कॉल्ड रे PQ। इट्स कॉल्ड रे PQ। इट्स also denoted by ray PQ whenever the starting point is first point P and Q। ओके, अब देखो एक छोटी सी बात समझाता हूँ। यहाँ पे एक दूसरे के सब पार्ट्स है। सबसे पहले आता है लाइन। क्या आएगी? लाइन। तो लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से एंडलेसली, A
बी। अब लाइन में ही रे छुपा होता है। क्या छुपा होता है? रे। लाइन में ही रे छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ही काउंट करूँ तो इतना ही, इट बिकम अ रे लाइक दिस, बी ए। या तो मैं ए से स्टार्ट करूँ तो इस तरह से मुझे मिलेगा ए बी। सो वी कैन गेट द टू रेज फ्रॉम वन लाइन। ओके, वी कैन गेट द टू रेज फ्रॉम वन लाइन। और रे और लाइन दोनों में इंक्लूड होता है लाइन सेगमेंट। किस तरह है? इस तरह से, अगर मैं इतना ही टुकड़ा लूँ तो ये ए बी यहाँ से जाने दूँ और ये सी ए बी यहाँ से जाने दूँ, देन वी कैन गेट द लाइन सेगमेंट ए बी। वी कैन गेट द लाइन सेगमेंट ए बी। अंडरस्टूड? इस तरह से मैं लाइन को कट करके भी लाइन को कट करके लाइन सेगमेंट ले सकता हूँ, और रे को भी कट कर सकता हूँ। इधर से रे को इतना मैं छुपा दूँ तो ये मुझे ए बी मिलेगा, यहाँ से इतना मैं कट कर दूँ तो यहाँ भी मुझे ए बी मिलेगा। मतलब ये चेन आपको मालूम होनी चाहिए कि सबसे बड़ी लाइन होती है, लाइन में से एक टुकड़ा निकालो तो मुझे रे मिलेगा, और लाइन में से दोनों टुकड़े निकाल दूँ तो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगा। उसी तरह रे में से मुझे लाइन सेगमेंट मिल सकता है। मतलब ये जो मुझे दोनों तरह से मिल सकता है, रे में से भी लाइन सेगमेंट मिलता है और लाइन में से भी लाइन सेगमेंट मिलता है। तो अभी तक हमने कितनी चीज़ सीखी? तो बेसिक जियोमेट्री में तो कि भाई हमने स्टार्ट किया पॉइंट से, पॉइंट तो सब में आता ही है, यहाँ पे भी पॉइंट है। लाइन इज द ग्रुप ऑफ द पॉइंट, बराबर। लाइन या तो लाइन सेगमेंट या तो रे, सब पॉइंट से ही बने होते हैं। तो इसका बेसिक एलिमेंट तो पॉइंट ही है। पॉइंट के बाद मुझे लाइन मिली, रे मिला, लाइन सेगमेंट मिला, और लाइन में से मुझे दो चीज़ और सीखने को मिली, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ तक हमने बेसिक ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तक आप लिख लीजिए। अगर ये डायग्राम पे आपको रफ में लिखना है तो आपको यूज़फुल होगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी बेसिक टूल्स सब ज्योमेट्री के डेफिनेशन के साथ ख़त्म होता है। राइट डाउन इन योर बुक। नाउ एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज द फिगर टू नेम। अब हमें फिगर में से देख के उसके नाम लिखने हैं। सो 5 पॉइंट, यहाँ से आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। देन वी कैन राइट हियर पॉइंट। 5 पॉइंट्स लिखना है तो यहाँ से बी, ओ, सी, ई एंड डी, ये मेरे 5 पॉइंट्स हो गए हैं। और लाइन, कोई भी एक लाइन लिखनी है तो लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लाइन डी बी। इस लाइन को आप डी बी भी लिख सकते हो, इस लाइन को आप डी ई भी लिख सकते हो, इस लाइन को आप डी ओ भी लिख सकते हो, ई बी भी लिख सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइन पर से, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप डी ओ डी बी ही लिखे। अगर आपको अच्छा लगा डी ई, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। 4 रेस। सो नंबर 1 रेस ओ बी, ये के एक रे मिला ना, ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट, ओ से बी की ओर आगे बढ़ रहा है, ओ बी। नंबर 2 ओ सी। नंबर 3 ओ, यहाँ पे कोई नाम हम लिख देते हैं, ए लिख देते हैं यहाँ पे, ए, ठीक है। ओ ए एंड 4th वाला ओ डी, ओ ई, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ओ डी, यहाँ पे मुझे 4 रेस मिल गए। उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट? 5। तो नंबर 1, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? फर्स्ट वन इज दिस वन, ओ टू ए। अगर मैं इतना ही टुकड़ा लूँ तो एक मेरा लाइन सेगमेंट हो गया ओ ए। नंबर 2
OB, लाइन सेगमेंट OB। नंबर 3, O से C तक का टुकड़ा मैं निकाल दूँ तो आई कैन लाइक राइट हियर OC। नंबर 4, OA, OB, OC, OE। और नंबर 5, ED। इतनी छोटी छोटी लाइन सेगमेंट हमें मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 letters एट अ टाइम फ्रॉम द गिवन फिगर। अब यहाँ पे मुझे पॉसिबल जितने भी लाइन सेगमेंट के नाम है, गिव द नेम ऑफ ऑल पॉसिबल वेज, नेम ऑफ लाइन। ओके, यहाँ पे हमें अलग अलग तरह से लाइन के नेम लिखने हैं, तो मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ AB। वी कैन टेक इन अ वन टाइम एनी 2 points। ओके, सो फर्स्ट वी राइट AB, सेकंड वन इज AC, देन AD, फोर्थ BC, BD, also be like a BA, but BA AB लिखो तो भी चलेगा, सेम टू सेम ही है। then we can also be like BD, then CD। अगर इस तरह से आप काउंट करोगे अलग अलग से तो क्या होगा, हमें कितने मिले 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इस तरह से अगर हमें नहीं लिखना है तो हम इस तरह से बाद में ये भी लिख सकते हैं, BC, BD एंड BA। ये भी अलग ही नाम हुआ। देन 8, अब हमने CD लिखा था तो वी कैन ऑल्सो बी लाइक CB एंड CA, CD एंड CA। देन 10th में हमने D वाला टर्म तो पहले कोई लिया ही नहीं है। देन DC 11, DB और 12, DA। टोटल हम इस लाइन को इतनी तरह से नाम लिख सकते हैं, 12 तरह से। कितनी तरह से? 12। कोई भी नाम आप कोई भी तरह से लिखो, ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन सही ही लगेगा और सही ही है। ओके, सो ये बेसिक है, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। ये सब आपको 10th तक सब आएगा, तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि आप लाइन के किसी भी 2 नंबर्स को, किसी भी 2 पॉइंट को पूरी लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी 2 अल्फ़ाबेट को ले लो तो पूरी लाइन रिप्रेजेंट हो जाती है। इट डजेंट मैटर आपने कौन से 2 पॉइंट लिए हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज द फिगर टू नेम। अब हमें इस फिगर को देख के इसके नेम यहाँ पे जो बताए गए उस तरह के लिखना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई पॉइंट हो ऐसी लाइन हमें लिखनी है। तो ई पॉइंट जहाँ पे है वैसी मुझे 2 लाइन मिल रही है। फर्स्ट वन इज लाइन EF एंड लाइन AE। ये पहली वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन, दोनों लाइन पे पॉइंट E कॉमन है। लाइन पासिंग थ्रू A में से पास हो रही हो ऐसी एक ही लाइन है। कौन सी वाली? AE। या तो AE लिखो, या तो AB लिखो, या तो AD लिखो। अब हमने यहाँ पे सीख लिया है, हम कोई भी 2 तरह से नाम, कोई भी 2 नाम लेके हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। लाइन ऑन विच O लाइस। अब लाइन लिखनी है जहाँ पे O है, वैसी एक ही लाइन है, लाइन CO। और 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे 2 पेयर्स हमें मिल ही रही है। पहली पेयर है लाइन CO एंड लाइन AD। पेयर ऑफ 2 लाइन AB एंड लाइन EF। फिगर के साथ विथ क्वेश्चन एंड आंसर राइट डाउन इन योर फेयर बुक ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर कोई एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास हो सकती है। कहाँ गई मार्कर? यस, एक पॉइंट में से, चलो मैंने एक लाइन पास की, दूसरी लाइन पास की, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, we can pass infinite line in from one point, and from 2 point we can only one line will be passed from 2 point। ये डेफिनेटली सही बात है। 2 पॉइंट, अब आप दूसरी लाइन है इसमें से पास करके बताओ, यही 2 पॉइंट में से आप दूसरी कोई भी लाइन पास करके बताओ, नहीं हो सकती, क्योंकि 2 पॉइंट में से one and only one line will be passed। In the question number 5, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Point P lie on line segment AB। AB के बीच में कहीं point P है। Number 2, line XY and line PQ intersect at M। Line XY and line PQ intersect at point M। Line L contain E and F but not D। Line L contain E and F। E और F लाइन L पर है बट D नहीं है, तो D कहीं बाहर होगा। Line OP and line OQ meet at O। Line OP and OQ meet at O। The both line are meet at O। Okay, so now question number 6 is Question number 6. Consider the following figures of line M और N। यहाँ पे एक लाइन M और N ड्रॉ की हुई है, जहाँ पे Q, M, O, N एंड P उस लाइन पर के सब पॉइंट्स है। तो ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। नंबर A, Q, M, O and P are point on the line M N। Yes, true। सभी पॉइंट कौन सी लाइन पे है? तो कि भाई M N लाइन पे है, सही है। M O N are point on the line segment M N। लाइन सेगमेंट देखो M N, ये लाइन सेगमेंट M N, उसके ऊपर पॉइंट M O N है, तो कि यस O है वो लाइन सेगमेंट M N के बीच में है, then B also be true। Number C, M and N are end point of line segment M N। M and N are the end point of line segment M N, also be true। Number 4, D, O and N, O और N are end point of line segment OP। No, लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट O और P है, नॉट N। N तो बीच वाला टर्म है ना। अगर मैं ये लाइन सेगमेंट की बात करूँ O और P की, तो उसमें क्या N एंड पॉइंट होता है? एंड पॉइंट तो लास्ट में होता है O और P। then D is false because of end point of end point of line OP is O and P। रीज़न लिखना है तो ठीक है। उसके बाद E आया, E में क्या आएगा? M is one of the end point of line segment Q और O। ये भी ऊपर वाले जैसा ही है, फॉल्स है ना।
एम एंड पॉइंट हो सकता है जब भी लाइन सेगमेंट क्यू और ओ में, बिकॉज ऑफ एंड पॉइंट ऑफ क्यू एंड ओ is O and Q point, not a point M. M तो कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। नाउ F, M is point on ray OP, ये इसकी बात हो रही है, O से P इस रे की, OP में कहीं भी एम आ रहा है, एम इज पॉइंट ऑन, नहीं वो तो यहाँ पे इस साइड है, एम है वो इस साइड है, इसीलिए रेस ओपी में एम आ नहीं रहा, इट इज ऑल्सो बी फॉल्स। ऑन रेस ओपी नॉट कंटेन पॉइंट एम, वहाँ पे एन कंटेन हो रहा है, ओ एम हो रहा नहीं है, एन आ रहा है और एम नहीं आ रहा। जी, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, ओपी क्यूपी से डिफरेंस है, फॉल्स। बोथ रेस आर इक्वल्स, है ना। आप यहाँ क्यू से पी वाला लीजिए, क्यू पी, और क्यू से ओ वाला लीजिए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में इन्फाइनाइटली जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम रे। विथ रीजन लिखता जा रहा हूँ। एच में रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, नो इट्स ऑल्सो बी फॉल्स, है ना। यहाँ समझा देता हूँ मैं। जी वाला क्या था, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, ओ पी, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने दोनों सेम समझा, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग है ना, मैंने क्यू पी और क्यू ओ समझा था, बट यहाँ पे क्या है, ओ पी, यहाँ से ओ पी और क्यू पी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की साइज अलग अलग है, ये ओ से स्टार्ट होता है, ये क्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए ट्रू आएगा। एज फॉल्स आएगा। आई, रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू ओ पी, अगेन फॉल्स, ऑपोजिट ही है, देख लो, ओ एम से ओ पी से ऑपोजिट नहीं है, ओ एम इस तरह जा रहा है, ओ पी उस तरह जा रहा है, दोनों ऑपोजिट रेस है। O is not an initial point of OP, false, initial point ही है, starting point ही है ना, और K, N is the initial point of ray NP and ray NM, true, NP और NM दोनों में initial point N ही रहेगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे दोनों तीनों फॉल्स है, HINJ, तो तीनों का रीज़न प्रॉपरली अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हो। H में आएगा OP इज द सेम रे एज OM, इट्स ऑपोजिट रे। OM is not opposite ray OP, yes, it's opposite ray, not नहीं, opposite आवे। और O is not an initial point of OP,
its initial point of its initial point of its initial point O is initial point of ray OP. Okay, write down the 3 all question in your fair book. Okay.